آپ کو بتائیں ینگ ڈاکٹرز نرسز سراپا احتجاج ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں ہڑتال ہے۔ سرکاری اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہڑتال سے ہزاروں مریض علاج سے محروم ہو چکے ہیں۔ نرسز کی جانب سے انڈور میں بھی کام بند ہے اور سینکڑوں آپریشن ملتوی ہو چکے۔ ہڑتال کی وجہ سے ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور اور ویران پڑے ہیں، مریض پریشان ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے۔ زاہد چودھری، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں اس وقت؟ جی، یہ 14 جون کو سائیوال میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے دوران جو ہے وہ سائیوال ٹیچنگ ہسپتال کے اور میڈیکل کالج کے جو پرنسپل ہیں ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ ہسپتال کے ایم ایس کو جو آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ جرس گئے تھے نرسری میں، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرنسپل اور ایم ایس کو وزیر اعلیٰ کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا، تاہم پھر اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو اس واقعے کے خلاف ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور ڈاکٹرز کی دیگر تنظیمیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں، اور خانے وال میں ایک اسٹاف نرس جو ہے وہ اس کو ایک بچے کو انجیکشن لگانے پر، جس میں اس کو ریئیکشن آ گیا تھا، اس پر گرفتار کیا گیا۔ اس نرس اکثر کی گرفتاری کے خلاف ینگ نرسز ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی سراپا احتجاج ہے، اور یہ 15 جون کو جو ہے وہ پہلی آؤٹ ڈور کی ہڑتال کی گئی تھی۔ اس کے بعد عید کی چھٹیوں میں ان جو ہسپتالوں کی ایمرجنسی اور آئی سی یوز ہیں اور جزوی طور پہ انڈور میں جو ہے وہ کام جاری رہا، لیکن یہ معاملہ کیوں کا توں ہے، ڈیڈ لاک ابھی تک تنظیموں کے ساتھ برقرار ہے، جس پر آج دوبارہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہڑتال جاری ہے آؤٹ ڈور میں، اور ڈاکٹرز اور نرسز کی جانب سے مکمل طور پہ نہ صرف او پی ڈی میں کام بند رکھا گیا ہے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں جو مریض ہیں وہ آج او پی ڈی میں علاج سے محروم رہے ہیں۔ اس کے ساتھ نرسز نے انڈور میں بھی کام جو ہے وہ ہسپتالوں میں بند رکھا ہے، جس سے سینکڑوں کی تعداد میں جو آپریشنز ہیں، دیگر پروسیجرز ہیں، وہ جو ہے وہ ملتوی ہو گئے ہیں۔ یہ اس وقت صورتحال ہے جس کا مریضوں کو سامنا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کا تدارک نہیں کیا گیا۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن اور کی جانب سے جو ہے وہ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، جب تک جو ہے وہ ڈاکٹرز کے گرفتاری اور ان کو ہتھکڑیاں لگانے کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر حکومت باضابطہ طور پہ معافی نہیں مانگے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صحت کے حکام جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے جو ذمہ داران ہیں ان کے مختلف ایشوز کے حوالے سے ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، تب تک یہ ہڑتال جاری رہے گی۔ دوسری جانب ینگ نرسز ایسوسی ایشن بھی جو خانے وال میں گرفتار نرس ہے اقصیٰ، اس کی رہائی تک جو ہے وہ اور اپنے دیگر مطالبات کی پورے ہونے تک جو ہے وہ اپنا احتجاج اور ہڑتال کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ زاہد چودھری ہمارے ساتھ تھے، تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ اسی حوالے سے بات کریں، شہر کے سرکاری ہسپتالوں کے آؤٹ ڈورز میں ہڑتال ہے اور جنرل ہسپتال میں بھی یہی صورتحال ہے۔ نرسز خانے وال نرس کی گرفتاری کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ہسپتال کی او پی ڈی بند ہے، مریض علاج معالجے کی سہولت سے مکمل طور پر محروم ہیں۔ جب تک نرس پر 302 کی دفعہ نہیں ہٹائی جائے گی احتجاج کریں گے۔ نرسز کا مزید کیا کہنا ہے، ہمارے ساتھ اقصیٰ سجاد موجود ہیں، وہ بتائیں گی۔ جی اقصیٰ۔ ساہیوال میں ڈاکٹر اور خانے وال میں نرس کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد جو ہے شہر کے مختلف او پی ڈیز جو ہسپتال کے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے، جس کے باعث مریض جو ہیں کافی پریشان حال دکھائی دے رہے ہیں۔ نرس جو ہیں یہاں پر کثیر تعداد میں احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ ان کا یہ نعرے بلند کیے جا رہے ہیں کہ نرس اقصیٰ کو رہا کیا جائے، تب تک جب تک اس کو رہا نہیں کیا جائے گا تب تک یہاں پر احتجاج کیا جاتا رہے گا۔ نرسز ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جان لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا ابھی تک نرس اقصیٰ کو رہا نہیں کیا گیا، کیا مطالبہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میڈیا والوں کا بہت شکریہ کہ ہمیشہ سے ہی میڈیا ہماری آواز بنا، اور جو لوگ ایوانوں کے اندر بیٹھے ہیں وہاں تک آپ لوگوں نے ہماری آواز پہنچائی۔ اقصیٰ کی رہائی نہیں ہوئی کیونکہ الٹیمیٹلی اقصیٰ کو رہائی نہیں مل سکتی تھی، کیونکہ اگر اقصیٰ رہا ہوتی تو سی او نے پکڑا جانا تھا، تو سی او پکڑا جاتا، پرچیزنگ والوں نے پکڑا جانا تھا، تو اقصیٰ کیسے رہا ہوتی۔ ہم نے بالکل اس دن بھی ٹیبل ٹاک کے لیے گئے تھے سیکریٹریٹ کے اندر، ہم نے اپنا پروٹیسٹ کارڈ کروایا تھا اور ریکویسٹ کی تھی اپنے جو ہمارے سینئر قیادت ہیں انہوں نے کہ سیکریٹری صاحب اور جتنے بھی ہیلتھ منسٹر ہیں وہ ٹیبل پہ ہیں اور سی او کو لے کے آئیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اقصیٰ کی طرف سے کوئی ایسا تھا
तो फिर सेक्टर जोन जो वहाँ पे स्टोर के अंदर पड़े हुए थे वो रातों रात जितना भी स्टॉक था वो क्यों ख़त्म किया गया। जिस दिन अक्सा की बेल थी हम लोग खुद खानोवाल गए हुए थे, उस दिन हम वहाँ पे मौजूद थे जब वहाँ के रिकॉर्ड रूम को आग लगाई गई। अगर सीईओ बिल्कुल साफ हाथ था तो सारे काम क्यों हो रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि हम नर्स की कुर्बानी देंगे तो ऐसा कतन भी नहीं होगा। ये गलतफहमी है सीईओ की, गवर्नमेंट की, सबकी। कभी भी हम अपनी नर्स को कुर्बान नहीं होने देंगे जाली दवाइयों के ऊपर। क्या मुतालबा है अक्सा के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इसको रहा किया, उस पर दफा किस तरह से हटाई जाएगी? हमारा एक ही मुतालबा है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जो जाली दवाइयाँ मंगवाते हैं, उनको पकड़ा जाए। और अक्सा का सबूत तो सीईओ ने खुद दे दिया दवाइयाँ जला के। अक्सा जो है वो फाल्टर नहीं है, जो चोर थे उन्होंने खुद सबूत दे दिया और वो खुद वो बेगुनाही साबित कर दी है। अक्सा का कोई गुनाह नहीं है। दूसरी जानिब मेयो अस्पताल में ओपीडी बंद होने से सैकड़ों मरीज यहाँ पे भी इलाज से महरूम हैं। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज जलीलो ख्वार हो रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की तमाम तंजीमें हड़ताल में शामिल हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, उमैर अफजल बता रहे हैं। जी उमैर। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ खानेवाल और साहिवाल में जो है डॉक्टर्स और नर्सेज के साथ नाखुशगवार वाक़े के बाद से शहर भर की तमाम अस्पतालों की ओपीडीज़ जो हैं वो बंद है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू हॉस्पिटल की ओपीडी में, जहाँ पर नर्सेज की जानिब से और पैरामेडिक्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है और मुकम्मल तौर पर ओपीडी बंद है। नर्सेज मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मुतालबात हैं और क्या वजह है कि ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। इनसे मज़ीद तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। मुझे सबसे पहले आप बताइए कि आप ये एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एहतजाज इसलिए हो रहा है कि हमारी जो एक बहन है चार्ज नर्स खानेवाल में, ठीक है, उसको हॉस्टल से उठा के पुलिस ने जो है वो एक तरह का किडनैप कर लिया है। ना फार्मासिस्ट को पकड़ा गया है, ठीक है, ना किसी डॉक्टर को पकड़ा गया है, ठीक है, ना वो जिसने जाली अद्वियात की जिसकी कंपनी है, ठीक है, जो 2 नंबर अद्वियात बनाते हैं, ठीक है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक चार्ज नर्स के ऊपर जो है वो सारा मलबा जो है वो डाल दिया गया है। ठीक है, और जो FIR है वो MS ने और CEO खानेवाल ने जो है वो FIR उसके ऊपर दर्ज करवाई है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा कब तक एहतजाज जारी रहेगा और ओपीडीज में कब तक मरीजों को जो है वो इलाज की सहूलत मुयसर आ सकेगी? वहाँ के जो भी माफिया है, जो ड्रग माफिया है, जाली अद्वियात जो इधर उधर जो है सारा सप्लाई करते हैं, जब तक उनके सारे जो हैं वो उन्हें नहीं पकड़ा जाएगा तब तक हमारे मुतालबात ऐसे ही रहेंगे और हम लोग ऐसे एहतजाज करते रहेंगे। हम लोग ड्यूटीज़ नहीं करेंगे, हम अपना जो है वहाँ से अपना ड्यूटी पॉइंट छोड़ देंगे। ये लोग खुद ही अपने लिए सब कुछ फिर करें। अगर यहाँ पे नर्सेज क्या कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, कोई डिग्निटी नहीं है हमारे यूनिफॉर्म की, तो फिर हम ये काम ही नहीं करेंगे। और उनकी गुफ्तगू सुनने के ना हमारे तमाम तर मुतालबात पूरे होने के बाद अस्पताल के बाद हम रुक करते हैं गंगाराम अस्पताल का। यहाँ पर आउटडोर्स में हड़ताल जारी है और क्या सिचुएशन है, मायदा वहीद इस हवाले से बताएंगी। जी मायदा। बिल्कुल, शहर लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में इस वक्त जो है वो हड़ताल देखने में नजर आ रही है। पर्ची काउंटर इस वक्त बंद किए गए हैं, कोई भी आउटडोर के लिए जो है वो मरीजों को चेक नहीं किया जा रहा। गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और AMS साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं, जो कि यहाँ पर खुद बतौर यहाँ पर अपनी सीट पर बैठे जो जितने भी मरीज आ रहे हैं उनको खुद चेक कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं, सर पर्ची काउंटर बंद किए गए हैं, नर्सिस की जानिब से हड़ताल की गई है, क्या मुश्किलात हैं जो यहाँ से दूर दराज से मरीज आ रहे हैं? काफ़ी मुश्किलात हैं जी, बेचारे इतने दूर दूर से आ रहे हैं, कोई मंडी बहाउद्दीन से आ रहा है, कोई गुजरात से आ रहा है, कोई कसूर से आ रहा है और इन सारों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और इस चीज़ का थोड़ा एहसास करना चाहिए YDA वालों को भी और नर्सिस को भी। जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने करने की कोशिश की है वो साहिवाल वाला मैटर तकरीबन 90% सॉल्व हो चुका हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि इसके ऊपर कोई ऐसी बात होनी चाहिए, क्योंकि मरीज़ तो बहुत सफ़र कर रहे हैं। लेकिन हमारे गंगाराम में जो हमारा ज़रा थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है, हमारे पास अपने डॉक्टर्स हैं जो परमानेंट आउटडोर के डॉक्टर्स हैं, वो सारे बैठे हुए हैं। पर्ची ज़रूर बंद है, लेकिन जो मरीज़ आ रहा है मेरी उन सारों को हुक्म ये है एज AMS कि आपने बगैर पर्ची के भी आपने मरीजों को वापस नहीं जाने देना, उनको देखना जरूर। इनका कहना है कि यहाँ पर हम जो है वो इनको इमरजेंसी में शिफ्ट तो कर देते हैं, लेकिन उस इलाज का कोई फायदा नहीं है जब तक मुकम्मल तौर पर यहाँ पर पर्ची काउंटर नहीं खुलेंगे और उनको मुकम्मल तौर पर मेडिसिन फ्राहम नहीं की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मायदा। तो यंग डॉक्टर्स, नर्सेज सरापा एहतजाज हैं। सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में इस वक्त हड़ताल जारी है। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल से हज़ारों मरीज़ इलाज से महरूम हो चुके हैं और ये तमाम तर शहर के जो सरकारी अस्पताल थे वहाँ से हमारे रिपोर्टर्स ने हमें आगाह किया कि जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन हैं इस वक्त ख़ासी मुश्किलात का शिकार हैं, जबकि बज़िद हैं तमाम तंजीमें। सरकारी और टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल इस वक्त जारी है और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं मानेगी हम इसी तरह ये हड़ताल जारी रखेंगे।
आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की तातीलात ख़त्म हो चुकी हैं। शहर में मुकीम परदेसी ईद अपने प्यारों के साथ मनाकर वापस लौट रहे हैं, जबकि लाहौर ईद मनाने के लिए आने वाले भी वापस रवाना हो रहे हैं। मुख्तलिफ बस अड्डों पर इस वक्त मुसाफिरों का रश है। कैसे मनाजिर हैं, क्या सूरत हाल है, रुमेल इलियास बता रहे हैं। जी रुमेल। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा की जो तातीलात है वो आज से इख्तिताम पजीर हो चुकी हैं और इस वजह से जो परदेसी हजरात लाहौर शहर में मुकीम थे वो अब अपने अपने आबाई इलाकों से वापस लौट रहे हैं अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाकर, जबकि लाहौर के जो रिहायशी जो कि दीगर शहरों में कामकाज की घर से मुकीम है वो भी जो कि ईद मनाने लाहौर आए हुए थे वो भी आज लाहौर से वापसी को रवाना हो रहे हैं। तो इस वजह से लाहौर शहर के मुख्तलिफ बस अड्डों पर आज मुसाफिरों का में आ रहा है। मैं इस वक्त जनरल बस स्टैंड बदामी बाग में मौजूद हूँ, जहाँ पर मुख्तलिफ अजला को जाने और मुख्तलिफ अजला से लाहौर आने वालों का रश है। मुसाफिरों की यहाँ पर जो है वो गहमा गहमी है। लोग जो है वो टिकट खरीद रहे हैं और अपनी अपनी मंजिलों को रवाना हो रहे हैं। ख़ास अच्छी बात यह है कि मौसम खुशगवार होने के बायस जो मुसाफिर सफ़र कर रहे हैं उनका जो सफ़र है वो अब खुशगवार गुजरेगा। सख्त गर्मी से मुरझाए जो चेहरे थे मुसाफिरों के वो खिल उठे हैं और बड़ी खुशगवार अंदाज में हम देख रहे हैं कि अब लोग जो है वो यहाँ से सफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा जो ननियाल में आए थे ईद मनाने के लिए, ददयाल में आए थे ईद मनाने के लिए, वो भी वापस लौट रहे हैं। लाहौर शहर में सैर सपाटे की घर से आने वाले जो सयाह है वो भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जो कि अब अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि परदेसियों की वतन शहर में वापसी का जो सिलसिला है वो कल रात से ही शुरू हो चुका था, जो कि आज तक जारी है और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2 रोज़ तक ये जो सिलसिला है परदेसियों की वापसी का वो जारी रहेगा। किरायों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो किरायों की जो ज़ायद किराया वसूली की जो शिकायत है वो मुख्तलिफ अजला से आने वाले जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से की जा रही है, जबकि जनरल बस स्टैंड बदामी बाग से ताहाल ज़ायद किराया वसूली की शिकायत मौसूल नहीं हो रही है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि हमने सेक्टरी ट्रांसपोर्ट की हिदायत पर किरायों में कमी की है। 100 रुपये तक जो है वो किरायों में कमी की गई है मुख्तलिफ अजला को जाने वाली बसों के किरायों में। इसके अलावा जो है वो बसें भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुसाफिर हजरात हैं वो बड़े ही खुशगवार अंदाज में यहाँ से अपना सफ़र कर रहे हैं और जो दीगर शहरों से आने वाले हैं वो। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रुमेल थे आगाह कर रहे थे। कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान हो गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया है। गुलबर्ग मॉल रोड पर बारिश, पंजाब असम्बली और एतराफ भी बारिश हो रही है। कुदरत है जो कि अब लाहौरियों पर मेहरबान हुई है और दर्जा हरारत में नुमायां कमी हुई है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। गुलबर्ग मॉल रोड पर बारिश और साथ ही साथ पंजाब असम्बली और एतराफ भी बारिश हो रही है। कलमा चौक, बरकत मार्केट, मेन मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। बादामी बाग, रेलवे स्टेशन, नौलखा, मैकलोर रोड के एतराफ भी बारिश रिकॉर्ड की जा रही है और बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में शहर में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो चुका है। गुलबर्ग, कूपर रोड, मॉल रोड में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि कलमा चौक, बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट में भी बारिश है। मेन मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बादामी बाग, रेलवे स्टेशन, नौलखा, मैकलोर रोड के एतराफ भी बारिश है जिससे गर्मी का जोर टूट चुका है। इस वक्त लाहौरियों पर कुदरत मेहरबान हुई है और जैसा कि पेशगोई की जा रही थी कि 2 दिन तक बारिश का ये सिलसिला शहर में वक्फे से जारी रहेगा, जिससे गर्मी का जोर भी टूटेगा। तो एक अच्छी खबर है लाहौरियों के लिए, गर्मी का जोर टूट चुका है और शदीद गर्मी में अब थोड़ी सी कमी आएगी क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि गुलबर्ग, कूपर रोड, मॉल रोड, कलमा चौक, बरकत मार्केट, फिरदौस मार्केट में बारिश हो रही है। इसी तरह मेन मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, गर्मी का जोर टूट चुका है और लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिलखिला उठे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कोमल असलम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे मौसम का मजीद तफसीली अहवाल। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम की बात की जाए तो शहर लाहौर में जो है वो अब अब्र रहमत ने बरसना शुरू कर दिया है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में ये जो बारिश बरसने का सिलसिला है ये आइंदा 22 जून तक जो है वो इसी तरह से जारी रहेगा। ये कमज़ोर मगरबी हवाओं का सिलसिला था जो कि शहर लाहौर में बारिश बरसाने का सबब बना
अगर मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो इस वक्त माल रोड, जेल रोड, कोट लखपत और इसी तरीके से जो है वो इचरा, चुबुर्जी, गुलशन रावी, समनाबाद इतराफ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं हल्की और कहीं तेज हवाएं भी साथ चल रही हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत है उसमें जो है वो कमी महसूस की जा रही है। माहिरीन मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज टेम्परेचर में जो है वो वाज़ेह कमी महसूस की गई है। इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्योंकि बारिश बरस रही है, इस वजह से रोड भी काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी हो चुके हैं। इस वजह से लाहौरियों को कहा जा रहा है कि दौरान सफर खास तौर पर स्पीड लिमिट का जो है वो खास ख्याल। अच्छा कोमल, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है कि ये प्री मानसून स्पेल है और दोबारा से नेक्स्ट स्पेल कब होगा? नहीं, ये प्री मानसून स्पेल नहीं है। जो प्री मानसून स्पेल है वो तकरीबन 25 के बाद शहर लाहौर में दाखिल होगा और प्री मानसून का जो सिलसिला है वो माहिरीन यही बता रहे हैं कि जून के एंड से शुरू होता है और जो जुलाई का मिड है तब जो है वो मानसून का स्टार्ट होगा। तो अभी ये जो है वो प्री मानसून नहीं है, ये वैसे ही एक कमजोर मगरबी हवाओं का सिलसिला था जो कि शहर लाहौर में बारिश बरसाने का सबब बन रहा है और ये बारिश बरसने का सिलसिला जो है वो 22 जून तक मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो देखा जाएगा। और माहिरीन ये भी बता रहे हैं कि इस वजह से जो है वो टेम्परेचर में थोड़ी सी कमी भी आएगी, लेकिन जो ही ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम लाहौर से खिताम पजीर होगा तो मौसम एक दफा फिर अपनी सख्ती दिखाएगा और टेम्परेचर में वाज़ेह इजाफा देखा जाएगा। इसी के साथ साथ जो है तो सूरज की किरणें भी तेज होंगी, जबकि आज के औकात से ही हम देख रहे थे कि मतलब जुज़वी तौर पर अबरआलूद था और बादल जो है वो शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मटकश कर रहे थे और यूं ही लग रहा था कि अभी जो है वो बरसना शुरू हो जाएंगे। और फिर देखते ही देखते हमने देखा कि काली घटाएं शहर लाहौर के बादलों पर आई और यूं शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है। बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ ही मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी।